Good morning. Today I deliver lecture on moment of inertia, and it is important for all those students who read mathematics, physics or engineering. This is lecture number 1, and before starting the moment of inertia, we discuss some important definitions. First of all, we know about the rigid body. What is rigid body? Rigid body, that means a system of particles which does not change its shape under the influence of any external forces, right? Or if change, that means change so small that it can be neglected. Thus, the distance between the particles does not change. Does not change, it means remains constant always with respect to the time. And the rigid body can be considered as a continuous distribution. Rigid body can be considered as a continuous distribution of mass, and practically no object exists in the universe which is perfectly rigid, right? Now, what do you mean by inertia? इसको देखिए बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं inertia को. Inertia क्या है? It is a tendency of all matter to remain at rest or in motion until added on by a force. ठीक है? ये आप पढ़े थे ऐसे न्यूटन्स लॉ में, है ना? उसी से आया इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ऑल मैटर टू रिमेन एट रेस्ट और मोशन, ठीक है, अनटिल एक्टेड ऑन बाय ए फोर्स, है ना? कोई भी अगर बाई बल से, है ना, इसको अगर हम चेंज ना कर दें तब तक ये रेस्ट में या मोशन में ही रहेगा. इट इज नोन एज इनर्शिया. एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Moment of inertia, it is the measure of an object's rotatory inertia. ठीक है? This is inertia and this is moment of inertia, or its tendency to resist increasing or decreasing rotation about some axis. ठीक है? ये बहुत important चीज है moment of inertia का. It is tendency to resist increasing or decreasing rotation about some एक्सिस. ठीक है? नेक्स्ट में सी नंबर में देखिए क्या है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये तो हो गया ना, ठीक है. यस, द सेंटर ऑफ मास, ये क्या है? इट जनरली ट्रीटेड at the reference point of for moment of inertia. The center of mass होगा, it is generally treated as the reference point of moment of inertia. reference point का मतलब हो गया जैसे कि किसी भी मेजरमेंट के लिए, किसी भी स्टडी के लिए हमको एक सेंटर का जरूरत पड़ता है, या रेफरेंस फ्रेम का जरूरत पड़ता है. उसी तरह से इसमें जो सेंटर ऑफ मास होगा, इट इज जनरली ट्रीटेड एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसके लिए आएगा, फिर से आइए. देखिए इनर्शिया के बारे में हम लोग जान लिए. इनर्शिया क्या है, फिर से चलते हैं. द टेंडेंसी ऑफ ए रिजिड बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और ए बॉडी इन मोशन टू स्टे इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन. ठीक है? और इन अदर वर्ड we can say that measure of resistance, ये important है, it is measure of resistance in linear acceleration, it is called inertia. Whereas moment of inertia क्या हो गया? It is called rotational inertia. That means measure of resistance of a rigid body in angular acceleration. वहाँ क्या है? linear acceleration. ये क्या है? angular acceleration. It is called moment of inertia, right? Next हम करते हैं. देखिए
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल क्या होगा। सपोज देयर इज ए पार्टिकल एट p एंड दिस इज ए लाइन, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एट p की पॉइंट पर अबाउट ए लाइन AB, ठीक है, इज डिफाइंड एज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। m क्या है, यह m इज द मास ऑफ द particle at at p, whereas r is the perpendicular distance from p to this line, that is pm distance is r, right? So where r is the perpendicular distance, that is pm of the particle from the line AB. Next is moment of inertia of a system of particles. Suppose there are number of particles having masses m1, m2, m3 as like figure m1, m2, m3 and so on, ठीक है। Saturated at distances, suppose that r1, r2, similarly ri, ये हो गया m1, m2, mi। ये डिस्टेंस लाइन के भी एक फिक्स लाइन है, इससे क्या डिस्टेंस है इसका r1, इसका r2, इसका ri, ठीक है। These are the distance, ठीक है। कहां से, एक फिक्स लाइन AB से। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट द लाइन AB, पूरे जो पार्टिकल है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स उसका AB लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसे मेजर करेंगे। इट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू समेशन mi ri, where I is the variable for particle to particle. Next, moment of inertia of a continuous distribution of mass. This is a rigid body which is a continuous distribution of mass, right? Then suppose that dm is the mass of an elementary particle of a rigid body which is at a perpendicular distance. उसका perpendicular distance ये fixed line कितना है, fixed line से r है, r from the given line AB. Then moment of inertia of the rigid body about the line AB, it is given by I is equal to integration of r square dm. तो कंटिन्यूअस मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, जबकि डिस्क्रीट रहे, डिस्क्रीट का मतलब हो गया जो, जैसे कि आप समझ सकते हैं ग्राफ में जब रैंडम चेंज हो, है ना, ग्राफ में तब वो आता है डिस्क्रीट के कारण। कंटिन्यूअस जब होगा तो वो जैसे साइनोइडल स्पेस होता है, साइनोइडल ग्राफ होता है उसके तरह का होगा। तो इसके लिए आता है इंटीग्रेशन, वेयर फॉर अभी हम लोग यूज किए थे, जैसे ऊपर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो वहां क्या आएगा, सिग्मा आएगा, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूअस मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तब I is equal to integration of r square dm यूज करेंगे, ठीक है। एंड सपोज दैट capital M, if this capital M denote the mass of the rigid body, then capital M is equal to integration of dm, right? Again, we define a quantity k, suppose that k, capital K, right? capital K is equal to कितना हो गया, oh sorry, ये तो इसके लिए निकल गया, ठीक। Moment of inertia is given by I equal to sigma r square dm. Next term is radius of gyration. ये क्या है? The moment of inertia of a continuous mass distribution about a line AB is given by I is equal to integration of r square dm, and if capital M denote the mass of the rigid body, then M is equal to integration of dm, right? And if we define a quantity k, capital K, such that I is equal to mk square, where m is the mass of the rigid body, right? Then k square is given by I divided by m, and therefore k square is equal to integration of r square dm upon integration of dm. This k is known as the radius of gyration. K is called the radius of gyration of the rigid body about the line AB, ठीक है। Next term जानेंगे, this is moment of inertia. Now the term is product of inertia. What is the product of inertia? Suppose that x1 y1, x2 y2, similarly xi yi be the coordinate of particles of masses m1, m2, mi,
refer to two mutually perpendicular lines, suppose that OX and OY. Then product of inertia of the system of particles with respect to the axis OA and OY is defined as capital F OX और OY के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे किससे, कैपिटल F इज इक्वल टू सिग्मा mi xi yi for the variable I and I varies from particle to particle. Similarly, we can define the product of inertia in case of the three dimensions like this, है ना. थ्री डायमेंशन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस है, तो yz के रेस्पेक्ट में कैसे हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा mi yi zi, zx के रेस्पेक्ट में आ जाएगा सिग्मा mi zi xi. ठीक है, इस तरह से हम थ्री डायमेंशन में ले सकते हैं. नेक्स्ट टर्म मोमेंटम, ये क्या है, द मोमेंटम इज द क्वांटिटी, मोमेंटम जानना, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसके लिए ऑफ ए मूविंग बॉडी. मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मेजर हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, कोई ऑब्जेक्ट अगर है रेस्ट में है, मूव नहीं करता है, दैट मींस इट हैज नो मोमेंटम. क्योंकि क्या है, मोमेंटम मेजर फ्रॉम मास एंड इट्स वेलोसिटी, एंड इफ इट हैज नो मोशन दैट मींस मोमेंटम इज जीरो, नो मोमेंटम. ठीक है, दैट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट हैज मोमेंटम. ये तो बात क्लियर हो गया ना. नेक्स्ट पे चलिए, एंगुलर मोमेंटम क्या है. एंगुलर मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, which is the product of its moment of inertia and its angular velocity. यहाँ देखिए क्या है, it's product of mass and velocity. और ये क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम is the product of moment of inertia and its angular velocity. That means the angular momentum is the same at every point, and angular momentum is the same at every point on an orbit. ठीक है, ये कैप्लर्स लॉ में आप जाने होंगे कि जब ये यही चीज है, जैसे कि when it is closer to the origin, origin के जब क्लोजर होगा it increases speed. ठीक है, similarly when it is farthest from the origin then it decreases speed. ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में दो पॉइंट होता है, वन पॉइंट इज नोन एज पेरिहेलियन, नेक्स्ट पॉइंट इज एपिहेलियन. पेरिहेलियन होता है सन जिस फोकस पर है, सन और जो अर्थ है या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है जो उस पर मूव करेगा, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस सबसे क्लोजर हो गया, दिस इवेंट इज नोन एज द पेरिहेलियन. और उसी तरह से एपिहेलियन हो गया फारथेस्ट डिस्टेंस के लिए. तो फारथेस्ट डिस्टेंस पर क्या होता है कि उसका देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है. और कैप्लर्स लॉ में आप पढ़े कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो इक्वल एरिया बनाता है, वो कारण भी उसका यही है, क्योंकि जैसे ही वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होगा, एंगुलर वेलोसिटी उसका रेज कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करेगा. तो एरिया अगर टी टाइम में जो कवर किया, फारदर डिस्टेंस में वही डिस्टेंस वही एरिया बनाएगा. वही कारण, उसी कारण से इसका यूज होता है, कैप्लर्स लॉ में हम लोग यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, यस, व्हेन ए प्लैनेट बी एट पेरिहेलियन पोजीशन, देन द स्पीड ऑफ द प्लैनेट विल बी मैक्सिमम. ठीक है, सबसे क्लोजर रहेगा तो स्पीड मैक्सिमम होगा. सिमिलरली व्हेन प्लैनेट बी एट द एपिहेलियन पोजीशन, देन द स्पीड ऑफ द प्लैनेट विल बी मिनिमम. ठीक है, इसको हम इससे समझ सकते हैं, अभी पढ़े मास एंड वेलोसिटी, इट गिव्स द लिनियर मोमेंटम. ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m with respect to the chosen origin is given by, कैसे निकलेगा देखते हैं, L is equal to m b r sin theta.
नहीं, उससे निकल जाएगा। देखिए इधर से हो गया r, इधर से हो गया mv, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, दैट मीन्स mv एक वेक्टर हो गया, उधर भी एक वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट है ना, क्या मिलेगा, तो mvr sin थीटा, दैट इज r, और इसमें हम ले लेते हैं, देखिए p sin थीटा, p कहाँ हो गया, यही हो गया, p इज द मोमेंटम, जो कि m into v के फॉर्म में आया था, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज द मोमेंटम। तो p हो गया मोमेंटम, ठीक है ना। तो p वेक्टर और r वेक्टर दोनों का क्रॉस वेक्टर, क्रॉस जो आएगा यही दे देगा आपको l, l is equal to r cross p, which is mvr sin theta, and it is given by this r, और ये हो गया, क्या लिख सकते हैं mv sin theta को, that is p sin theta, so right it is equal to simply r cross p, that means l is equal to r cross p, and the direction is given by right handed screw system या right handed rule. For a system of part plane we have L is equal to system of part plane, तो एक के लिए लोग डिफाइन कर लिए। Similarly, if there be a system of part plane, then L is equal to sigma of Ri cross Pi, and I varies from I to 1 to n. If there be n particles, तब हो जाएगा, नहीं तो वेरिएबल केवल I रखते हैं इसमें, right? And now it is equal to, as Pi is equal to कितना mi vi, so sigma Ri mi vi, ठीक है। mi को बाहर निकालिए इसमें, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, so क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस Ri and vi, ठीक है। बट यू नो दैट va, which is the linear velocity और angular velocity के बीच रिलेशन होता है, v is equal to omega cross r, so put the value of vi, that is omega cross Ri, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हर एक के लिए सेम होता है, इसीलिए ओमेगा क्रॉस Ri हो गया, ठीक है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर के फार्मूला से a क्रॉस b क्रॉस c, दैट इज acb माइनस abc, तो इससे आ गया कितना mi ri डॉट ri ओमेगा, ओमेगा वेक्टर में आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ri डॉट ओमेगा, ओमेगा वेक्टर में होगा, उसको ठीक कर लेना है, ठीक है, ओमेगा और ri। नाउ whenever ri is suppose that xi I plus yi ij zi k, where ij k ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स along the axis. Similarly omega is equal to omega xi, omega yj, omega zk, and l, कैपिटल L जो हो गया वेक्टर में, है ना, तो ये हो गया lxi lyj lzk, जहाँ की lx ly lz ये क्या है, कंपोनेंट, ये किसका निकालना है, देखिए यहाँ पर ये ले रहे हैं, कंपोनेंट ले रहे हैं मोमेंटम का, है ना, ये निकालना है एंगुलर मोमेंटम का, कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस, है ना, ये मिल गया। अब आइए ri डॉट ri, इट गिव्स सिंपली कितना ri स्क्वायर, दैट इज xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर प्लस zi स्क्वायर, और प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट अब डाल दिए वेक्टर में ले लेना है, ये छुटा हुआ है यहाँ पर ri डॉट ओमेगा वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा i ओमेगा x, है ना। सिमिलरली yi ओमेगा y और प्लस यहाँ होगा प्लस zi ओमेगा z, ठीक है। अब ये सब का मान यहाँ से इसमें अब रख दें, जैसे कि ये क्या कितना आ जाएगा, इसका कंपोनेंट l का मान रख दिए lxi, ये हो गया, सभी का मान इसमें रख देंगे, मान रख करके इक्वेट करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे, इसको पहले आप नोट कर लेंगे, एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i j and k, इससे जब इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट को तो मिलेगा, हो गया, तो इससे मिल जाएगा, देखिए lx इज इक्वल टू इतना, ly इज इक्वल टू दिस मच एंड lz इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये तीन इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, तीन इक्वेशन मिल जाएगा, ये इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए आफ्टर सॉल्विंग देन lx इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या है
xi यहाँ wx इस फॉर्म में है, इसको हम क्या चेंज कर दिया, lx को चेंज कर लिए mi के फॉर्म में केवल, ठीक है ना, और बाकी कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल हो करके जो रेस्ट बचेगा आफ्टर सॉल्विंग वी गेट lx is equal to this, ly is equal to this and lz is equal to this, है ना। ये तीन इक्वेशन इसमें मिलेगा, इसको पहले लिख लें। देन इट कैन बी रिटन एज, ओके, इट कैन बी रिटन एज, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, lx is equal to, तीनों को अलग अलग ब्रेक कर दिए, है ना, है ना, इसमें देखिए y i z i इस फॉर्म में है, ये क्या चीज होगा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, lx is equal to mi yi square plus zi square wx, समेशन तोड़ दिए, माइनस इतना, ठीक है। और ये आप जानते हैं ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, इसके लिए x एक्सिस एंड रिटन बाय कैपिटल A, ठीक है, इसको पहले नोट कर लें। ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a system of particle or rigid body about x axis, about x axis में हो गया, और इसको हम लिखते हैं a से। उसी तरह कैपिटल B is the moment of inertia about y axis, कैपिटल C is moment of inertia about z axis, तो ये मिल जाएगा। इसलिए x axis के लिए कैपिटल A हो गया, सिग्मा mi y i square plus z i square, it is a ओमेगा x, ठीक है, माइनस ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है ना, xi yi विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, रिटन बाय कैपिटल F, सो राइट माइनस f ओमेगा y और z i xi रिटन बाय कैपिटल E, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू z एक्सिस एंड x एक्सिस, सो रिटन बाय कैपिटल E, सो माइनस ऑफ E ओमेगा z। Similarly, this is the product of inertia with respect to x axis and y axis. So Ly is equal to minus of f omega x plus ये हो गया moment of inertia about y axis written by capital B. So B omega y. Similarly, this is the moment product of inertia with respect to y axis and z axis. So written by minus of d omega z. Similarly, Lz is equal to, यहाँ से मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस y एक्सिस, बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स x i z i, ठीक है, ये मिल गया माइनस e ओमेगा x। सिमिलरली दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस एंड z एक्सिस रिटन बाय माइनस d and d, so d omega y, and this is moment of inertia about z axis written by capital C, so c omega z छुटा हुआ है इसमें, ओमेगा z छूट गया, ओमेगा z यहाँ लिख देना है। नाउ इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, ये तीन लीनियर इक्वेशन हो गया, ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z में, दैट मींस lx ly lz, it is a linear equation in omega x omega y omega z, so it can be written in terms of matrix as like this, lx ly lz, and ये मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स written by this into this, मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, देखिए दिस मैट्रिक्स A, ध्यान से देखिए ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये डायगोनल में ABC है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया कितना, देखिए F E और देखिए F E E, और ये सिंगुलर एलिमेंट है, तो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज नोन एज inertia matrix. This is I equal to this is known as inertia matrix, and the diagonal element A, B, C are called moment of inertia about the axis. ठीक है? And element lying in the upper or lower triangular matrix are called product of inertia with respect to coordinate axis. ठीक है? ये जान लेंगे हम लोग। तो in short अब ये जानिए यहाँ पर, ये अगर L हो गया, ये I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी के लिए, तो कैसे लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज नाउ L इज इक्वल टू I ओमेगा, ठीक है, ये यही मिल जाएगा इक्वेशन के फॉर्म में।
where n is equal to this, I is equal to this and omega is equal to this, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम लोग चलेंगे आगे फिर। तो अब देखिए इसमें a बराबर ये हो गया, जानेंगे दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, whereas d, this is the product of inertia about y axis z axis, e the product of inertia about z axis and x axis, whereas f is the product of inertia about x axis and y axis। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये क्या है? लेट m be the elementary mass of a particle of the rigid body situated at P, कोई एक पॉइंट है P पर, and suppose that O be the origin, OX, OY and OZ be a set of perpendicular axes. The moment of inertia of the body about OX, it is given by capital A is equal to sigma m y square plus z square। ठीक है, ये चीज हम लोग देखें। Similarly, moment of inertia of the rigid body about y-axis and z-axis, that means about OY and OZ, are given by capital B is equal to sigma m z square plus x square and C is equal to sigma m x square plus y square। And also the product of inertia of the rigid body, right? Product of inertia of the rigid body with respect to OX and OY is given by capital F, which is sigma m xy, and similarly product of inertia of the rigid body with respect to OY, OZ, that means with respect to y axis and z axis, and similarly with respect to z and x axis, and OZ and OX are, तो इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं d से, d कैपिटल D इक्वल टू सिग्मा m yz एंड कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा m zx। एंड सपोज दैट G, कैपिटल G is the centroid of the rigid body, ये rigid body है, इसका centroid हो गया। एंड नाउ अब क्या करेंगे, ऑरिजिन को हम शिफ्ट कर दिए, O से O पॉइंट से G पर शिफ्ट कर दिए और एज्यूम कर लिए जो x y z P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसका न्यू कोऑर्डिनेट हो गया x डैश y डैश z डैश। ठीक है, और g का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x बार y बार z बार। ठीक है, तब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिए O से कहां पर, G पर, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, यानी कि ये जो एक्सिस न्यू एक्सिस है, दिस एक्सिस आर पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, इसके पैरेलल है। ठीक है, ये सारा वही चीज है, इसको अपलोड कर लेंगे केवल। इसमें समझ में क्या किए, चेंज द ऑरिजिन फ्रॉम O, ये शिफ्ट द ऑरिजिन फ्रॉम O टू G without changing the direction of the axis, and suppose that the new coordinate of P becomes x bar, y bar, z bar, whereas coordinate of G is x dash y dash z dash, whereas coordinate of G is x bar, y bar, z bar. Then you know that yes, if m, capital M be the mass of the rigid body, then capital M is equal to sigma m. Therefore, small x, इस तीनों के बीच रिलेशन क्या होगा, small x is equal to x bar plus x dash, y is equal to y bar plus y dash, similarly z is equal to z bar plus z dash. And coordinate of the centroid of the rigid body are sigma mx dash divided by sigma m is equal to 0, similarly sigma my dash divided by sigma m is equal to 0, इसी द्वारा मिलता है centroid का। Similarly sigma mz dash divided by sigma m is equal to 0। thus यहाँ से क्या मिल गया, sigma mx dash is equal to 0, sigma my dash is equal to 0 and sigma mz dash is equal to 0, इससे मिल जाएगा। ठीक है, now कैपिटल A is equal to कितना है, sigma m y square plus z square। तो x y और z का मान रखते हैं, है ना, जो अभी आफ्टर शिफ्टिंग द origin from O to
जी, ये रिलेशन मिला था। अब यहाँ से हम लोग इसका मान रख देंगे y और z का, देन यू गेट दिस, है ना, y और z का मान रखा है। इसको सॉल्व कर देंगे a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, देन यू गेट m y बार प्लस z बार y बार स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर, सिमिलरली सिग्मा m y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा m y बार y डैश प्लस 2 टाइम्स सिग्मा m z बार z डैश। अब देखिए क्या है, y बार x बार या z बार, ये क्या है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सो यू कैन सपोज दैट इट इज फिक्स इन ऑल रिस्पेक्ट। सो ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। ये अगर बाहर हो जाता है क्या बचेगा, सिग्मा m, एंड यू नो दैट सिग्मा m इज इक्वल टू कैपिटल M, सो राइट कैपिटल M y बार स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर, ठीक है। एंड ये क्या हो गया, न्यू कोऑर्डिनेट है, ये तो एज वही रहेगा, सिग्मा m y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर, ये रह गया वैसे। वेयर यहां से हम y बार निकल गया, क्या बच गया, देखिए 2 टाइम्स ऑफ y बार सिग्मा m y डैश। तो अभी हम लोग निकालेंगे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट से, दिस विल इक्वल टू 0 एंड दिस विल इक्वल टू 0, ये दोनों 0 मिल जाएंगे। सो यू गेट रिजल्ट a बराबर क्या मिल गया, m टाइम्स ऑफ दिस, है ना, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, इसको हटा देंगे, m टाइम्स ऑफ दिस प्लस सिग्मा m टाइम्स ऑफ दिस। ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंट्रॉइड, नहीं, thus a can be written as moment of inertia of mass m, है ना, placed at g about 2x, whereas this is the moment of inertia about gx dash, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो गया, देखिए कैपिटल A इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m प्लेस्ड एट g अबाउट OX प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट gx डैश। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन निकालिए। सिमिलरली वी कैन फाइंड द रिलेशन in terms of the product of inertia. Again, suppose that capital F is equal to sigma m xy, then put the value of x and y in this, and after solving you get sigma m x bar y bar plus x bar y dash plus x dash y bar plus x dash y dash। यहाँ से फिर देखिए सिग्मा को ब्रेक कर देंगे हर एक पार्ट पर, क्या मिल जाएगा, x bar y bar सिग्मा m प्लस x बार सिग्मा m y डैश प्लस y बार सिग्मा m x डैश प्लस सिग्मा m x डैश y डैश। एक सिमिलरली जैसे ऊपर आया था, ये और ये पार्ट क्या हो गया, 0, बट दिस इज इक्वल टू कैपिटल M, सो राइट कैपिटल M x बार y बार प्लस दिस थिंग, एंड सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल M x बार y बार प्लस इतना, क्या चीज मिल गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m placed at G, center of gravity, नहीं, with respect to OX and OY plus ये part क्या है, this is the product of inertia about GX dash GY dash, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था पैरेलल थ्योरम में। नेक्स्ट में हम जानेंगे, देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, that is the moment of inertia of a plane mass distribution, है ना, that is suppose that in case of here lamina with respect to any normal axis is equal to कितना है, the sum of moments of inertia about any two perpendicular axes in the plane of distribution, है ना, plane mass distribution, that is lamina, and passing through the intersection of the normal with the lamina। इसके लिए कैसे होता है, इस पे लेके चले, suppose that OX and OY be the axis in the plane lamina and OZ ये क्या है, be the normal axis which passes through the point of intersection of OX and OY, that is passes through the point O and perpendicular to the plane of lamina, नहीं, ये OZ हो गया। And now we have to show that capital C is equal to A plus B, where capital C is the moment of inertia of the plane mass distribution about OZ and AB are the moment of inertia about x axis and y axis. That by definition
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओजेड, ये कितना होता है? दैट इज c इक्वल टू सिग्मा ऑफ m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस दोनों को ब्रेक कर देंगे, सिग्मा को मिल जाएगा दिस प्लस दिस, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस फॉर द प्लेन मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए 3 एक्सिस में अबाउट जो होगा 3 डायमेंशनल में ये नहीं होता है, 3 डायमेंशनल में अलग हो जाता है x एक्सिस के लिए, तो c इक्वल टू a प्लस b हो गया। सिमिलरली for 2 dimensional body we have d or e, the product of inertia about z axis, x axis, y axis and z axis, this will be 0 and therefore capital F is equal to केवल हो जाएगा sigma m xy, right? And for converse of the perpendicular axis theorem ये क्या है? Whenever c is equal to a plus b, then we have to show that it gives a plane mass distribution, that means it gives a plane lambda. For this here a is equal to, you know that a is equal to this, right? b is equal to this in general and c is equal to this, and we have, देखिए क्या है, we have by 1 we have sigma m x square plus y square which is equal to sigma m y square plus z square plus sigma m x square plus z स्क्वायर, नहीं ठीक है? इससे क्योंकि a और b का मान दे दिए कितना मिल जाएगा। अब जरा उसको सिग्मा को एक जगह कीजिए, देखिए क्या आता है, मिलेगा सिग्मा m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा m y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिग्मा mz स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना? दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड देयरफॉर फॉर अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m ये क्या देगा? वी मस्ट हैव mz स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड विच गिव्स z इज इक्वल टू 0 एज m इज मास जो हो गया पार्टिकल का वो 0 नहीं है, तो z बराबर 0 आ गया। z बराबर 0 क्या देता है? इट गिव्स प्लेन मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज ए प्लेन टेबल, because if z is equal to 0 represent xy plane, ठीक है? तो ये मिल गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दिस ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? इसमें दो थ्योरम लोग जान लिए, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सारा चीज जान लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कुछ इस पर एग्जांपल्स, और यहाँ एक चीज हम लोग समझ गए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कि अगर किसी भी पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मालूम है, वहां से अगर हम सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, है ना? और जैसे जैसे हम दूर हटेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स पर हम लोग देखेंगे, जो हालांकि इंटर से आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते आ रहे हैं, इसमें भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक एग्जांपल्स है उस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे, फिर उसका और भी जो है इसमें मोमेंटल एलिप्स और सारा चीज उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।